Hello students, welcome to Skholar IAS, your one-stop solution to IAS preparation. This video is the second video in the series that we have started, which is designed in a way to cater to your necessities of solving multiple choice questions towards the examination of civil services that is scheduled to take place on 27th of June 2021. So as we had discussed our four important questions last Saturday, and there was good response of students also. They communicated to us that they are appreciating the way these questions are being discussed, the way we are trying to focus on different aspects of the strategy of solving an MCQ. It's not only about content. For those people who have not seen our last video and those who are joining new, I just want to recapitulate what all essential concepts we had discussed, forgetting about the content of the individual questions. So the idea was that you have to first identify uh, the important topic on which the question has been framed. Sometimes there may be an intersection of two topics. For instance, there may be a question which may be framed at the interface of chief minister and governor, or on the interface of prime minister and uh, president, if you talk about polity particularly. Similarly, in other subjects also, there can be multiple concepts at use or at deployment in one single question. So this is one thing. Next, you have to identify the piece of information that you actually and very confidently know, right? जो बात आपको ठीक से पता हो कि हाँ इसके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे मालूम है ये बात. That is one thing. But as I had explained to you, the possibility of these kind of questions in which you are very sure objectively that you know exactly what is right in this question is only 35%, maximum 40%. However polished a candidate you may be. The game of clearing prelims examination actually lies in solving at least 40, 45 more questions, 50 more questions, using your intelligence, using your uh, skill to eliminate an option, using your skill to zero down to a possible probable option, right? So these things we are trying to focus in our last session. We'll try to do this in this particular session also, where we have tried to bring to you a mixture of questions. One is in polity, one question is in economy, one is in environment, and one is in probably geography. And map work is there. So as we go through these questions, I'll try to explain to you how uh, you have to prepare, basically. It's not about understanding only. Prelims examination is not only about understanding. In fact, and ironically, in preparation of civil services examination, content or understanding of the concept plays a very minimal role. It's largely and substantially about putting to use the fact of concept that you have read, right? So if it is same topic, but you are preparing for prelims examination, and in another case, you are preparing for a mains examination, and in yet another case, you are focusing for interview, your analytical lens will change. How you look at the same content, that should change, because otherwise you won't be able to solve those questions. In prelims examination, there has to be more focus on peculiarities, subtle differences, right? Facts, numbers, places, names, and so on and so forth. But for mains examination, you need to have a broader understanding of the thing. And for interview, you need to have your own perspective. So that's how the tone of the preparation undergoes a change as you move up in the ladder from prelims to mains for interview, right? So this is just a prelude. I hope you will keep these facts in mind, because still you have entire April and May and almost entire June, in which you'll be solving so many MCQs, some test series. So last point I just want to reiterate before I start explaining the questions is that it is important that you take test series very religiously. It is not some formality kind of thing that every candidate has to do. If you're not very serious about how you are going to utilize that test series, then there is no point in wasting time on it. You can watch first video in this regard that I
delivered on last Saturday, there I have explained how to approach a test series. आप उसको देखें, आप उसको समझने की कोशिश करें कि how to extract the maximum advantage from solving MCQs. It is not in the number of MCQs that you attempt. You may attempt 100 MCQs, somebody may attempt 500 MCQs. But if you just do it for sake of doing it, you're not extracting the juice out of it, you're not extracting the actual learning that it was supposed to give you, then I'm sorry, it is not going to benefit you in the examination. So we have encountered students who have not undertaken more than, let's say, 10 or 20 tests from a particular test series, but they have masticated it so much that they have extracted the entire learning from those 20 papers. So keep that in mind. Focus on how you arrive at a solution, then look at the model answer and explanation, then compare it. Why did you go wrong? Keep the logic in mind. Just don't proceed when you find your answer to be true. It might happen that your logic is not correct. आपका आंसर मॉडल आंसर से मिल जाए ये काफी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आप सही लॉजिक से आंसर तक पहुंचे हैं कि नहीं. Hence I use the word religiously. आपको काफी अंदर जाकर के एक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, और जो भी हर क्वेश्चन से लर्निंग हो सकती है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. With this in backdrop, let us start our discussion of 4 important MCQs for this session. So as you can see, these are the statements that are given. There are 3 important statements, and then we have a question that you have to figure out which of these is correct. क्या सही है, क्या गलत है? You have to figure them out after reading these 3 statements, and then you have to see which option fits जो आप सोच रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है, right? So let us read the first statement. It's about nominated members of which house? Upper house, that is Rajya Sabha. It talks something about Rajya Sabha, and in that also it talks about some nominated members. You must know that there are, how many members are there in Rajya Sabha, what percentage or fraction of them is actually elected, and how many of them are nominated by the president, under which article president has the power to appoint some members as the nominated members of the Rajya Sabha, right? Then it talks about some rights and privileges of those nominated members of Rajya Sabha. In which context? In the election of the president. So question ये कहता है कि राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड हैं और नॉमिनेटेड हैं, राइट? सो क्या उनके पास सेम पावर्स है? किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में? राष्ट्रपति के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में. यानी when election of president is taking place, and then you have to basically vote from Rajya Sabha, elected members and nominated members both are going to have same right and privilege. They are going to vote. ये बात सही है या नहीं, ये आपको बताना है. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है. Second statement is about important law that is called anti-defection law. The statement is suggesting that it was not present in the original constitution. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब बेसिकली है जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने आजादी के बाद जो डिबेट करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. नॉन ओरिजिनल क्या हो सकता है? सबसीक्वेंट अमेंडमेंट, जैसे 100+ अमेंडमेंट्स आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं. सो यू हैव टू सी वेदर anti-defection law was there in the original text of the constitution or has it been added by some further amendment to the constitution of India. कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है. Third, the nominated members of the Rajya Sabha are subjected to disqualification, right? ये second से associated है क्योंकि anti-defection law is also a law which provides कि किस condition में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हाउस से, राइट? सो थर्ड स्टेटमेंट इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड टू द हाउस, राइट? आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन का मतलब? अब हमें देखना है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है.
तो अगर पहले ऑप्शन को देखें, इट्स वेरी प्लेन फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। जिसने भी पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत से या किसी भी सोर्स से पढ़ा होगा, उसमें जब डिस्कशन राज्यसभा का आया होगा, या वो जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां इलेक्टोरल कॉलेज का डिस्कशन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है, उसके कलेजियम, उसका जो कलेक्शन है लोगों का, उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेस के और स्टेट के। उसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। एंड दैट्स वेयर द क्वेश्चंस ऑप्शन लाइज कि one is not correct because nominated members are not going to vote in the election of the president of India. So that's about one. So one cannot be your answer. So by elimination, हम साथ साथ elimination का strategy भी समझेंगे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन फर्ज करिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर करते इस क्वेश्चन को कि सिर्फ ये जानना काफी होता कि वन गलत है, तो ये नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, यानी बी और सी में कोई आंसर है। सपोज बी और सी में भी जो ऑप्शन है उसमें किसी में वन होता तो वो आंसर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस में आपको 2 और 3 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ वन इज इनफ। सो साथ साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, राइट? So either of these two is correct. The anti-defection law was not present in the original constitution. This is true. Why? Because in the initial years after independence, there was a lot of horse trading that used to take place. एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पर्स एंड प्रिविलेजेस के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चले जाते थे, क्योंकि उनको रोकने के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था। बट इट लेड टू अनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। हमें पता ही नहीं होता है कि कितने मेंबर्स पर हम एक्चुअली भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज एनी टाइम दे कैन माइग्रेट, राइट? सो देयर इज अ फेमस फ्रेज यू मस्ट हैव हर्ड, आया राम गया राम। Gayalal was one of the MLAs of Haryana, and within fortnight he changed the party in which he belonged 3 or 4 times. So Aya Ram Gaya Ram has become the popular idiom from that time onwards. After that, a 52nd constitutional amendment came. जिसको 52nd 52वां संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके थ्रू कुछ रेगुलेशंस बनाए गए कि किस कंडीशन में कोई पार्टी छोड़ सकता है और किस कंडीशन में कोई आदमी पार्टी नहीं छोड़ सकता है। और अगर वो गलत तरीके से पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दे विल नॉट बी MLAs or MPs anymore. I'm not going to detail discussion of anti-defection law that you can read elsewhere. But the point I'm trying to communicate is that it was not there in the original constitution. It was brought after certain experiences of the practice of Indian democracy. And 91st Amendment was also subsequently came in this fresh first decade of 21st century. And in that, some other conditionalities were changed around anti-defection law. You take any source of polity and you read about it, you will get to know all the information. Right? Third option, the nominated members of the Rajya Sabha are subjected to disqualification if they join a political party within 6 months of being nominated in the House. ये within 6 months नहीं होना चाहिए, after 6 months होना चाहिए। कि अगर आपको चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है और आप अपने नॉमिनेशन के 6 महीने तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं, तो आप क्या होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपकी नीयत पर शक होगा कि इतना टाइम बीतने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? अगर आप 6 महीने के भीतर भीतर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, then you are not disqualified. After that, if you do, you are disqualified. So third is also wrong. So C cannot be an answer. So by elimination, we see that only 2 is the answer. एक और तरीके से आप सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट ये कंक्लूड कर ले कि 1 गलत है और 3 गलत है और उसे 2 के बारे में सही से पता नहीं है, he is not very sure whether 2 is correct or not, then he did not need to know, because if you eliminate 1, A and D are gone. If you eliminate 3, then C is also gone. So important नहीं रह जाता है कि आपको पता है या नहीं पता है एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था। इसे ही हम कहते हैं इंटेलिजेंट थिंकिंग। आपको कम से कम इंफॉर्मेशन का यूज करके मैक्सिमम कंक्लूजंस तक पहुंचना है।
और उसमें एक लॉजिक का यूज करना है। इसी चीज को आपको टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के थ्रू होन करने की जरूरत है। सिर्फ एक सही एक गलत आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। What is important is that you learn these things as you go ahead, right? You understand how to utilize minimum information at your disposal and still arrive at more and more correct answers, right? Next question. This is from geography. There are some regions given from east to west. आपको देखना है कि मैप में अगर हम देखें तो ये ईस्ट में सबसे ज्यादा कौन है और वेस्ट में सबसे ज्यादा कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि हर साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में वी सी दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन व्हिच यू नीड टू नो अबाउट सर्टेन ऑड प्लेसेस जिसका नाम बहुत कॉमन नहीं है, but they were in news due to some reason, either because of some visiting of state dignitaries, or there may be some crisis around the globe in that place, or there may be some kind of climate catastrophe, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, वो किस स्टेट में हुआ, इस तरह की जानकारी जो है इनके अराउंड फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज बनाता है। या कोई ऐसा कॉन्टिनेंट हो सकता है जहां कोई टेररिस्ट अटैक हो गया हो, या हमारे कोई स्टेट डिग्निटरी कहीं विजिट करने गए हो, या कहीं पर कोई ट्राइब ऐसी हो जो इस तरह की चीजों का कहीं पर डिस्कवरी हो गया हो। जो भी चीज है, करंट अफेयर्स को जब आप रिवाइज करेंगे तो यू हैव टू बी अ बिट फसी अबाउट फैक्ट्स कि कौन सा प्लेस एग्जैक्ट गए हैं। मेंस में ये आप नहीं लिख सकते। मेंस में यू कैन सिंपली से प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इजराइल। लेकिन प्रीलिम्स में जब आप जाते हैं, देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट व्हिच वाज द नेम ऑफ द टेंपल एंड इन व्हिच सिटी ऑफ इजराइल इट वाज देयर वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड वर्शिप। आपकी फैक्ट्स की टेस्टिंग होती है, आपकी एक्यूरेसी की टेस्टिंग होती है, right? So this is the way of preparing this kind of questions of map based work, right? And one more thing I just want to clarify in this question, that there is largely some reason because of which those places are important. ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी को सपना आया, उसने कोई भी प्लेस उठा के ऑप्शन फ्रेम कर दिया। It may happen that there can be some arbitrariness, but you have to go by this understanding कि जो भी जगह न्यूज में है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें, उसके न्यूज में होने के कारण को भी जान लें, उसकी थोड़ी हिस्ट्री को जान लें, उसकी थोड़ी ज्योग्राफी को जान लें, उसके नेबरहुड को थोड़ा बहुत जान लें, इतना काफी होता है, ठीक है? जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि गलवान वैली में कोई चीज हुई, यूपीएससी में उस पर क्वेश्चन भी था कि गलवान वैली आप कम से कम 3, 4, 6 महीने से सुन रहे हैं कि वहां पर इंडिया चाइना के बीच स्टैंड ऑफ है। तो ये आपका धर्म हो जाता है कैंडिडेट के रूप में कि आप थोड़ा पढ़ें कि गलवान क्या है, आसपास कौन सी नदियां जा रही हैं, आसपास कौन सा पीक है, कौन सी पहाड़ है, किस स्टेट के अंदर वो पड़ रहा है, राइट? उसकी सी लेवल से हाइट क्या है, ये जो बुनियादी चीजें होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सो हमारे ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन, लक्कादीव सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी। सो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एक कैंडिडेट हैं, उनका नाम BM है, जो लाइव चैट में लिख रहे हैं 1 2 3 4। पहले उन्होंने बी ऑप्शन लिखा, फिर अब वो ए ऑप्शन लिख रहे हैं। उनके हिसाब से ये मिस्टेक हो गया उनसे, लेकिन आई वांट टू जस्ट अंडरलाइन दिस फैक्ट। अच्छा किया उन्होंने लिखा। बेसिकली जो उनसे गलती हुई है वो कहते हैं हड़बड़ाहट में गलती करना। उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट की जगह वेस्ट टू ईस्ट लिख दिया, ठीक है? अगर आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए तो उन्होंने 4 3 2 1 लिख दिया, राइट? BM, एम आई सेइंग द राइट थिंग? यही आपसे हुआ है प्रॉब्ली। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। सो इस तरह की चीजों के लिए यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर कि ऐसा एरर ना करें। कभी कभी हम इसमें पूछा जा सकता है कि नॉट, तो आप नॉट को नहीं पढ़े ढंग से, ईस्ट टू वेस्ट है तो आप ईस्ट टू वेस्ट पढ़ गए, राइट? छोटे से बड़ा है तो आपने बड़ा से छोटा लिख दिया ऑर्डर में। तो इस तरह की गलतियों से बचना है। द वे, ओनली वे टू not do these kind of silly mistakes is to be very alert and mindful. आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और है आपका, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, because each and every wrong answer can be devastating for your selection, ठीक है? Thank you BM. So
what is the correct answer code? It is 4321, 1234, 1342 or 1423. So let us have a look at the map. आप देखेंगे कि ये अगर वर्ल्ड का मैप है पूरा हमारे सामने, तो गल्फ ऑफ एडन जो है, ये गल्फ एरिया में, जैसे हम गल्फ कहते हैं नॉर्मली, गल्फ तो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, लेकिन हम गल्फ एरिया कहते हैं इंडिया के लोग, केरल के लोग। तो यहाँ पे यमन, इथियोपिया और इस लोकेशन के आसपास गल्फ ऑफ एडन है, राइट। लक्षद्वीप सी आएंगे तो आप लक्षद्वीप से रिलेटेड इसका नाम है और वो यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन है ईस्ट टू वेस्ट। तीसरा जो आपके गल्फ ऑफ थाईलैंड है वो यहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में, और इसके ईस्टर्न साइड पे और आप जाएंगे तो साउथ चाइना सी है। नाउ जस्ट लुक एट इट, साउथ चाइना सी लगभग 3-4 साल से न्यूज में है ना। जब से Chinese expansionism and aggression and all thing is increasing, it is trying to sort of claim that South China Sea is China's sea, right? उसमें तरह तरह के military explorations करना, उसमें artificial islands बनाना, वहां पर arbitrary lines बताना कि ये 9 dash line है और 9 dash line तक हमारी अपनी territory है Chinese civilization की। कुछ और कंट्रीज से इसके स्कफल होते रहते हैं कि वो कंट्रीज के लोग फिशिंग के लिए आते हैं, चाइना कहता है ये हमारा पानी है, आप इसमें फिशिंग नहीं कर सकते। सो वट एवर बी द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज, यू जस्ट नीड टू नो कि ये बहुत न्यूज में रहने वाली चीज है। सो ये आपके लिए इंपेरेटिव हो जाता है कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा न्यूज में रहे तो आप एक बार जा करके उसके बारे में देखें, मैप पे उसे लोकेट करें, आसपास कंट्रीज देखें कि यहाँ फिलीपाइंस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा इंडो चाइना वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, कौन सी कंट्री से बाउंड्री टच हो रही है, किससे नहीं हो रही है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन की बात भी अब करें तो वहां पर एक बार क्राइसिस हुआ था और इंडिया के जो काफी सारे लोग हैं वहां फंस गए थे, तो उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से निकाला था। उस ऑपरेशन जो किया जाता है लोगों के इवैक्यूएशन का, उसका भी एक नाम रखा जाता है। आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या उसका नाम ऑपरेशन राहत था, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी उसके इवैक्यूएशन में, वो क्राइसिस क्यों आई थी यमन के आसपास, थोड़ा बहुत उस एरिया के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के बारे में भी देख लेंगे कि किस किस कंट्री के नेबर में है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। लक्षद्वीप आपको टर्म से पकड़ लेना चाहिए था और थाईलैंड वगैरह का लोकेशन तो आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज 4321। आपको ईस्ट से वेस्ट बताना है, तो सबसे ईस्ट में जो है वो साउथ चाइना सी, उसके बाद आएगा गल्फ ऑफ थाईलैंड, उसके बाद लक्षद्वीप सी और लास्ट में गल्फ ऑफ एडन। दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट टेकिंग अ लीव फ्रॉम इट, एक और टॉपिक हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज अबाउट गल्फ होता क्या है, किस ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को हम गल्फ कहते हैं। तो जब आप वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के या कहीं से भी, तो जब आप ओशंस चैप्टर पढ़ेंगे या लैंड फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको देखना होगा कि गल्फ क्या है, स्ट्रेट क्या है, बे क्या है, लगून, एस्चुरी, डेल्टा, ये जो ज्योग्राफिकल लैंडमास के फॉर्मेशंस हैं उनमें सटल डिफरेंसेस क्या है, बिकॉज उनके अराउंड भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो गल्फ और स्ट्रेट का अंतर तो आप पक्के से देख लेंगे, स्ट्रेट दुनिया में कहां कहां है वो देख लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं गल्फ और स्ट्रेट्स, उनके बारे में भी थोड़ा सा यू कैन रीड अबाउट देम। सो टू थिंग्स concluding this particular question is that keep a very keen eye on what places are there in the news and why they are in the news. Read about it, थोड़ा बैकग्राउंड उसके बारे में जान लें। और दूसरा, जो बीएम ने गलती की उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रश थ्रू नहीं करेंगे, थोड़ा लोकेट कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि बहुत थोड़ा सा अंतर रहेगा लोकेशन में, लेकिन थोड़ा अगर माइन्यूटली जाएंगे तो आपको लगेगा कौन सा प्लेस ईस्ट में है, कौन सा प्लेस वेस्ट में, ठीक है। तो वहां पर गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ ओमान से रिलेटेड कोई प्लेस बोल देते और यमन से रिलेटेड बोल देते, हो सकता है आप जल्दी जल्दी करने में गड़बड़ कर देते। सो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, खास करके प्रीलिम्स में, देयर इज नो पार्डन, कोई माफी नहीं हो सकती इस बात की दैट यू आर रशिंग थ्रू, उसके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं हो सकता। सो हाउ यू कैन मेक श्योर कि आप माइंडफुल रहें, अलर्ट रहें। अगेन कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जाएं और मेंटली अलर्ट होकर उन्हें सॉल्व करें।
तब जाके ये आपका नेचुरल डिस्पोजिशन, आपकी सोचने का तरीका बनता है कि आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट इन्वायरमेंट। So we are talking something about plastic pollution kind of thing, and next is about coral reefs. ठीक है, तो कोरल रीफ्स के बारे में एक क्वेश्चन है, कुछ डिजीज को लेकर डिस्कशन है प्लास्टिक्स की वजह से। ये हमारे क्वेश्चन का बैकग्राउंड है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग वेज डू प्लास्टिक्स रेज द रिस्क ऑफ डिजीज आउटब्रेक ऑन कोरल रीफ्स। तो अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, कम से कम 10 साल से, थोड़ा जब से इन्वायरमेंटल क्राइसिस बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की रफ्तार बढ़ रही है, तो कोरल रीफ पे बहुत खतरा है। ठीक है, कोरल रीफ क्या है? यू कैन go through your environmental textbooks and you will be get to know that it is a kind of ecosystem formation in the marines. जो भी समुद्री एरियाज होते हैं वहां एक तरह का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो कोरल्स होते हैं और एक एल्गी होता है जूज़ैंथेल। दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का क्या मतलब है कि दोनों जब साथ आके रहते हैं तो कोई किसी पर डिपेंडेंट है लेकिन दूसरा भी उस पर डिपेंडेंट है। जैसे हिंदी में हम सहभोजिता कहते हैं, यानी साथ साथ मिलकर के सरवाइव करना। जो कोरल है वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और जूज़ैंथेल जो है वो फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कोरल्स को खाना मिल जाता है जूज़ैंथेल से, जूज़ैंथेल को एक रहने का ठिकाना मिल जाता है कोरल्स पे। दोनों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इससे लॉजिकल एक्सटेंशन आप ये कर सकते हैं कि एक बंदा भी अगर इस चीज के काम को, अपना पार्टिसिपेशन जो है उसको जस्टिफाई ना कर पाए, जूज़ैंथेल खाना ना बना पाए, फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, या जो कोरल है सिस्टम वो ब्रेक डाउन कर जाए, वो सपोर्ट सिस्टम बेडरॉक प्रोवाइड ना कर पाए, तो जो एंटायरिटी में वो सिम्बायोटिक सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। राइट, इसी को हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ। दुनिया भर में कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड और मैं बता दूं आपको, कोरल रीफ क्यों इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ इसलिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली बिकॉज ये बहुत ही नाजुक सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम है, बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है। जैसे ये जिस इन्वायरमेंट में है, मैराइन इन्वायरमेंट में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलता है उसके वाटर्स में। थोड़ा भी टेम्परेचर अगर वेरिएशन होता है क्लाइमेट चेंज से, तो बाकी ऑर्गेनिज्म थोड़ा बर्दाश्त कर भी पाए, कोरल रीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एक तरह से हम इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, कि कोरल रीफ अगर डैमेज हो रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि मैराइन इकोसिस्टम में कोई तो गड़बड़ी है। चाहे उसके अंदर ऑयल स्पिल हुआ है, या उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, या उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। सो एक तरह से हमें हेल्थ इंडिकेटर जो है, हमारा मैराइन इकोसिस्टम जो है कितना हेल्दी है, अपने ओरिजिनल कंपोजिशन में कितना है, इस बात का एक इंडिकेशन देता है हमें कोरल रीफ का हेल्थ। राइट, तो अगर हमारा मैरीन पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, प्लास्टिक डेब्री उसमें बहुत ज्यादा जा रहा है, कोरल रीफ का इरोजन होना शुरू होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अगेन एक 10 साल से तो ये न्यूज में है ही, थोड़ा इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि वहां क्या रीजंस हैं और ये क्यों डेंजरस है। राइट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ऑप्शन के रूप में बन सकता है कोरल रीफ पे, कि जैसा आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसे हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लंग का काम क्या होता है? सांस लेना, अच्छी हवा लेना। रेस्पिरेशन से ही हमारा बाकी का पूरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सरवाइव करता है, सस्टेन करता है, इसलिए सांस को हम प्राण वायु भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है अमेज़न वगैरह में, वो इतनी डेंस है, वहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि वहां पर हम देखते हैं कि वो अगर दुनिया में ना हो तो बड़ा खतरा है। ठीक है, उसी तरह उस डाइवर्सिटी की कंपेरेबल डाइवर्सिटी ही हमें कोरल रीफ में मिलती है। कोरल रीफ की इतनी यूटिलिटी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेराइन इकोसिस्टम मेंटेन होता है। थोड़ा डिटेल में आप और पढ़ लेंगे। इसीलिए कोरल रीफ को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम्स। थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ लेट अस कम टू द ऑप्शंस। प्लास्टिक डेब्रिस स्ट्रेस corals through blocking out light and oxygen, giving pathogens a chance to take hold.
ये बात सही है कि जब प्लास्टिक डेब्रिस बढ़ता है तो वो लाइट और ऑक्सीजन जो आ रहा है उस साइम्बायोटिक इकोसिस्टम पे उसको ब्लॉक कर देगा। तो जाहिर है वहां पर कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं जो अपनी जड़ बना लेंगे और नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ कोरल रीफ विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड। Second option, pathogens in the ocean thrive on plastic surfaces, thereby increasing their numbers and the vulnerability of corals with elevated levels of plastic pollution around reefs. This is also correct. Third statement, coral organisms get infected by sharp plastic fragments that cut them, following which the disease spreads across the coral colony. ये बात भी सही है, सो हमारा आंसर होगा डी ए बी सी। ये तीनों बात सही है। बहुत ही नाजुक है कोरल रीफ्स, थोड़ा भी उसको चेंज आता है तो वो एंड्योर नहीं कर पाता, वो डिकपल हो जाता है। जूजेंथेल कोरल को छोड़ के चले जाते हैं, इट एबेंडन्स देम। अगर नेचर देखें तो नेचर बहुत ही ब्रूटल है इस मामले में कि कोई भी किसी एसोसिएशन में नहीं है जहां उसे कोई बेनिफिट नहीं हो। जूजेंथेल को जब तक लगता है कोरल हमें बेनिफिट दे रहा है तब तक वो उसके साथ रहते हैं, उसे खाना देते हैं। जब नहीं लगता है तो वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कोरल का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। सो इसमें जो पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Next question and last for the day is about Indian economy. Which of the following statements about MPFA is correct? Monetary Policy Framework Agreement is correct. तो लाजमी है कि आपको MPFA के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है क्या। सो यही है इस क्वेश्चन का मतलब। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड दिस बैंकर ऑफ द बैंक्स, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, ठीक है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा है ये एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में कि मिनिमम इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा कि ग्रोथ आ सके। थर्ड है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप क्लास 11th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर जाएं तो वहां पे आपको मोटा मोटा इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और तमाम वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, किसी भी मटेरियल में मिल जाएगा कि मोटा मोटा एक बात आप समझ लें कि गवर्नमेंट का काम होता है फिस्कल पॉलिसी बनाना। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे है, फिस्कल पॉलिसी में ये बात आती है कि हम कितना खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर, और कितनी हमारी आमदनी होगी। दैट इज हम टैक्सेशन से, सेस, सरचार्ज, फीस एक्सेट्रा के थ्रू कितना पैसा उगाही करेंगे, कितना पैसा लाएंगे और कितना पैसा खर्च करेंगे। ये जो डिसीजन है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे लेती है। दूसरा, हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि जो रुपया का क्वालिटी है, लेट्स से, या प्राइस स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये बात आरबीआई को भी ध्यान में रखना होता है। राइट, मॉनेटरी सर्कुलेशन का काम आरबीआई के हाथ में होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दे। व्हाट विल हैपन, अ लॉट ऑफ मनी विल गो इनटू द इकोनॉमी। What will happen because of that? एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। बहुत सिंपल है, एक बार समझ लेंगे तो आगे तक काम आएगा। If more money is going into the economy through whatever policy of the government, it can be lowering of interest rate also। कि मान लीजिए बैंक सस्ता लोन देने लगे कि ठीक है भाई, आप 100 रुपए लोन ले रहे हैं तो आपको 105 रुपए ही चुकाने होंगे, तो देयर विल बी मोर एक्सेप्टेंस ऑफ लोन ऑफ द पीपल। वो लोन लेंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा चीजों का, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा। यानी whenever growth is taking place there is also a tendency of the economy कि प्राइस राइज भी हो। लेकिन जब प्राइस राइज होगा तो जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कोप अप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हमारे पास इन्फ्लेशन कितना रखना है और ग्रोथ कितना चाहिए। हम एक चीज के बेसिस पर इकोनॉमी नहीं चला सकते कि हमें फर्क नहीं पड़ता है ग्रोथ कितना कम हो, हम पैसा दाम नहीं बढ़ने देंगे। राइट, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि दाम चाहे जितना बढ़ जाए हम ग्रोथ नहीं रोकेंगे।
लेकिन इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, क्राइसिस पॉलिटिकल हो जाएगा, सड़कों पर लोग आ जाएंगे, गरीबी भूखमरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में हम मार्केट में बहुत पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो प्राइस राइज भी होगा, और प्राइस राइज होगा तो भी कुछ लोग परेशान होंगे। सो यही एक इंटेलिजेंट बैलेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी के लेवल पे करनी होती है कि हम कितना दाम बढ़ाएं और कितना ग्रोथ रखें। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन को एक बार देखते हैं। इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, इट इज एन अग्रीमेंट between banks and Reserve Bank of India to ensure that changes in interest rate are passed on to the customers. इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। बैंक कहां से पैसा लाते हैं? बैंक आरबीआई से भी पैसा लेते हैं, ठीक है, कस्टमर से भी लेते हैं। और अगर आरबीआई कहता है कि हम नीचे वाले बैंक्स को, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी, कोई भी बैंक ले लें आप, उसको हम 10% में मान लीजिए आरबीआई लोन देता है, तो वो क्या करेगा? वो आपको 10.5% पे देगा, 12% पे देगा, 11% पे देगा, क्योंकि उसको ही 10% पे मिल रहा है। तो लोन को मेंटेन करने के लिए, पूरी व्यवस्था बैंकिंग को मेंटेन करने के लिए वो कुछ कट रखेगा अपना। नाउ एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अब आरबीआई मान लीजिए 10 से घटा करके 9% कर दे, तो बैंक को सस्ता लोन मिला। तो आरबीआई कहता है बैंक से कि हमने सस्ते में आपको लोन दिया है, तो आप अगले को भी सस्ते में लोन दें, आप कस्टमर्स तक ये बेनिफिट पहुंचाएं। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लेकिन नॉर्मली हमें देखने को ये मिलता है कि आरबीआई भले सस्ता कर दे लोन, लेकिन बैंक्स कस्टमर को सस्ता नहीं देते हैं। लेकिन यही आरबीआई का लोन का दाम बढ़ा दे कि नहीं 10 नहीं 11% पे बैंक को लोन देंगे, तो तुरंत कस्टमर्स तक वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, राइट। बाय द वे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज ये अग्रीमेंट है सरकार के बीच और आरबीआई के बीच कि हम किस इन्फ्लेशन को ब्रीच नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। इट इज एन बी को देख लें, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई ऑन द मिनिमम इन्फ्लेशन रेट। ये बहुत लॉजिकल अपने आप में नहीं है। इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? कोई भी कहेगा कि कम से कम होना चाहिए। इन्फ्लेशन हमें चाहिए क्यों? अगर हम प्राइस स्टेबल रख रहे हैं, ग्रोथ रख रहे हैं ढंग का, तो हमें महंगाई कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि whenever you see in the economy price increases there is a protest, so it cannot be a desirable thing कि दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। सो बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अग्रीमेंट अगर होता होगा, कॉमन सेंस लगाइए, तो इसी बात पे होगा ना कि आप मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितना रखें, किस तरह से पॉलिसी बनाएं, किस करें कि आपका इससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो। ठीक है, तो बी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं है, इसका आंसर ए है, राइट। दैट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इन इंडिया, दैट इज आरबीआई, कि मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट कितना होगा ताकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, राइट। थोड़ा फैक्ट जान लेंगे कि ये कब हुआ। 20 फेब 2015 को ये चीज हुई थी। यूनियन बजट 2016-17 में इस चीज को स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दिया गया। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी जो ये फैसला करेगी। ठीक है, so students, I hope you enjoyed and you also learned something from today's session, in which we have tried to solve one question each from 4 important disciplines of prelims examination. Again, my suggestion to you would be to focus more on how we arrive at a conclusion. आपके साथ मैंने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन when we discuss together, when you write in the chat box, when I explain to you, when you see that what you are thinking is not right, what I'm saying is different from yours, then you start rethinking. And I want you to do that thinking alone. वो thinking ही important है जो आपको question solve करने के लिए train करेगी. Last sentence in this discussion, you have to be very clear that बहुत कम ऐसे questions होंगे जो आप देख के गए हैं. Question वहां नए होंगे, इसीलिए नए questions को देख करके एक लॉजिकल अप्रोच के थ्रू उन तक पहुंचना, यही आपको सीखना है टेस्ट सीरीज के थ्रू, राइट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने पूरा पॉलिटी रिवाइज कर लिया, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को देखें। एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक ऑप्शन है, एक राज्यसभा पे एक ऑप्शन है, बीच में प्रेसिडेंट इलेक्शन का एक ऑप्शन हमने घुसा दिया, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन बनता है। वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने कोलाज फॉर्म में लाया,
इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया कि आपसे गलती करवाई जा सके और फिर आपको वो समझाया। तो जब तक आप इस एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, एलिमिनेशन को नहीं करते हैं, कम इंफॉर्मेशन में कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, कभी-कभी वाइल्ड गेस लेना आपको नहीं आता है, तब तक आपका प्रीलिम्स होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। इसलिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को लें, बहुत सीरियसली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और हमारे इस सेशन जो हम चला रहे हैं स्कॉलर आईएएस पे, इसको देखें, इसे सीखें। साथ ही साथ हम एवरीडे करंट अफेयर्स भी लेके आ रहे हैं, जहां हम हर दिन वीक के एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप उसको भी देखें, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, विल मीट नेक्स्ट वीक सेम टाइम, same day, and we'll bring to you 4 important questions. हम इसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें and keep preparing for prelims examination. Thank you so much.